स्ट्रेंजली आई थिंक यू आर द फर्स्ट पर्सन जो सबसे पहले उठता है जिस ग्रुप में हम लोग हैं अभी एडेड. You wake up at 6 p.m. So 6 a.m. Sorry. So 6 AM नहीं 5 AM. every day. हाँ, I try. But ये morning 5:30 हो जाता है पर 5 इज़ but द गोल. बट मॉर्निंग टाइम तो देवताओं का टाइम बोला जाता है कि ये देवताओं का टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त. सो यू आर एन एथिस्ट. व्हाई डू वेक अप सो अर्ली? अब से अच्छा ये वन. एथिस्ट का टाइम है. अच्छा. एथिस्ट मुहूर्त. एथिस्ट मुहूर्त. But one question I always wanted to ask atheist is or anyone who don't believe in God or any kind of rituals. There is a lot of family pressure. I'm sure you might have heard this question many times, but I'm also curious, so I'm asking. But because we live in a society where religion is so deeply ingrained in every sphere of the life. And especially since you're like, even if you say that I don't believe in it, I don't believe in customs, I don't believe in rituals, but the family pressure is so much that many people can't, practice their atheism in India, in a religious, extreme religious society like India. So how has been your experience of navigating that space, and what can you It's advise to the people who? so the first thing to understand about this is that it varies from person to person and from family to family. So एक परिवार की बहू के ऊपर रिलीजन को फॉलो करने का ज़्यादा प्रेशर रहता है. अगर आपकी शादी हुई हो तो आपके ससुराल वालों की तरफ से और उसी प्रकार के सिस्टम्स की वजह से आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहता है. My life is made easy by two factors. A, my immediate family doesn't really care that much. And B, I don't have many of those pressures. Like I'm not a bahu and I'm not married. So that actually makes it easier to not engage in religious rituals and stuff. And to the extent that family pressures, मैं ये नहीं कहूँगा कि और इसका एक एक ये भी होता है कि इफ़ यू आर फ्रॉम एन इस्लामिक बैकग्राउंड तो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहता है. लाइक मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि एथीस्ट हैं, पर उनको हिंदू एथीस्ट मानते ही नहीं है बिकॉज़ उनका नाम मुसलमान है, राइट? सो एक हिंदू टू अ सर्टेन एक्सटेंट अगर कोई हिंदू बैकग्राउंड से आता है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट दे कैन जस्ट से नहीं, नहीं सांख्य फिलॉसफी, चारवाक फिलॉसफी, ब्ला, 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 मैं तो अपने आप को एथीस्ट मानता हूँ. सो वो एक चीज़ है जो फंक्शन करती है फैमिलियल बैकग्राउंड में, इस चीज़ को आसान करने के लिए. सो आई वुड से द रीज़न मेरे ऊपर इतना प्रेशर नहीं है इज़ मोस्टली माय प्रिविलेजेस. So there is that's a very interesting point because you never think it from the gender perspective. कि atheism के अंदर भी like there is a gender perspective, and also there is different religion who operate, or let's say respond to atheism in a different way. So that is also a thing there. But इनफैक्ट मेरे लाइव स्ट्रीम पे कुछ ऑडियंस मेंबर्स थे जो कि मतलब देयर वुमेन राइट, दे हैव क्रिएटेड सेपरेट ग्रुप फॉर देमसेल्व्स बिकॉज एज अ वुमन इफ यू आर एन एथीस्ट द काइंड ऑफ चैलेंजेस यू फेस ये बहुत अलग होते हैं एक लड़के को जो फेस करने पड़ते हैं उसके मुकाबले, क्योंकि ऑन मेनी ओकेजन से एक लड़का इंटरनेट पे बहादुर बन जाता है, भगवान नहीं होता, मैं नहीं मानता, साइंस साइंस साइंस." पर उस औरत को अपने इन लॉज के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ 50 तरह की प्राइवेट लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है एज एन एथीस्ट, जिसके बारे में हम लोग को पता भी नहीं होता है. सो उन्होंने अपना एक सॉलिडारिटी ग्रुप बनाया जहाँ पे वो लोग अपने कंसर्न्स शेयर कर सके. and is there a good amount of women in India who believe in atheism? Do you think so? बिलीव इन एथिज्म और डोंट बिलीव इन गॉड, बिलीव इन Sorry, एथिज्म कुछ believe होता not ही believe in नहीं. atheism. This, I mean, हु who आर don't believe in God, एथियस्ट. who are atheists. Sorry, yeah. हाँ, I think so. There must be. Like we don't have good statistics on this. Hmm. The last good statistic we had was from several years ago. I think 2011. And उसमें तो बहुत ही छोटा नंबर दिखाया गया था. I think a significant number of things have changed since then. And हाँ, I do think that there are plenty of women atheists in India as well as the world. बट ऑब्वियसली इंटरनेट पे चूंकि अगर यूट्यूब चैनल अपना भी देख लो ना तो ज़्यादातर ऑडियंस आपको मेल दिखेगा. सोशल मीडिया पे भी वही हाल है. सो वी शुड नॉट अज्यूम दैट जस्ट बिकॉज समवन इज एन एथिस्ट दे आर ओपनली एथिस्टिक. देयर मे बी पीपल इन रिलीजियस फैमिलीज हु डोंट बिलीव इन द थिंग्स दैट दे आर डूइंग. सो एक इन डेप्थ एक ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी होना चाहिए पता करने के लिए.
एक एक बॉलीवुड में एथिज्म का नॉट एथिज्म बट गॉड को चैलेंज करने का सबसे बड़ा इमेज वो आता है एक अमिताभ बच्चन बड़ा गुस्सा हो जाता है हाँ। भगवान से, तो फिर वो मंदिर में जाता है और भगवान या को उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर देता है कि कुछ हाँ, तो है ना डायलॉग कि तुमने ये कर दिया मेरे साथ, मैं नहीं मानता तुझे। भगवान मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं माँगा। तो एंड देन there's a भगवान very says क्या झूठ बोल रहा है, पिछले हफ्ते तो टूथब्रश माँग रहा था। so, so I'm curious to know, like, how have you arrived at this particular position that no, I won't believe in God, or this is something that is not part of my It's ideology. it's not that I won't believe in God. Like nobody, if this is a, if I'm holding a pen, can I say that I won't believe in it? Right? In fact, can you believe that this is not a pen? If you know something, you have no choice but to believe it. Right? It's inescapable. Knowledge leads to belief. But when you don't have knowledge of something or knowledge about something, and there doesn't even seem to be a way in which you can have knowledge about it, we are just the ones who say, I'm having some problem believing in that claim. That's an atheist. And the problem with the Bollywood impression of the atheist is that it has created a lot of problems for actual atheists because people keep thinking कि तुम लोग जानबूझ के विश्वास नहीं करना चाहते क्योंकि you're just assholes. No, that's not it. We can't. There is no evidence. We can't. How will we believe in something for which there is no evidence? Can you believe in dragons if I don't give you any evidence? Like I can't say to you, अरे just बस मान लो, just believe it. How does it matter? Just believe anything. और उसमें प्रॉब्लम ये है कि आज तुम ये मान लोगे, कल कोई आके कुछ और मनवा लेगा, परसों बोलेगा कि ये मान लो कि वो लोग खराब हैं, उसके बाद वाले दिन कोई बोलेगा ये जड़ी बूटी खा लो तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। इट कीप्स एस्केलेटिंग। सो थोड़ा स्केप्टिसिज्म होना चाहिए लाइफ में। एक एक रिलीजन का भी एक बड़ा, जिसमें बहुत सारी इस तरह की डिबेट्स भी बहुत सारी होती हैं कि अगर रिलीजन का एक रोल है एक एक डे टू डे मोरालिटी डिसाइड करने के अंदर कि किस तरह की मोरालिटी आपकी होनी चाहिए, किस तरह की नहीं होनी चाहिए, एक मेन रिलीजन का एक इस तरह की चीज़ें हैं। और लास्ट पॉडकास्ट में राहुल सोनपिंपले came to my podcast, and since he is from a Ambedkarite background and you are aware that Buddhism उसमें कितना बड़ा रोल प्ले करता है, सो ही वाज फॉर रिलीजन बेसिकली कि बुद्धिज्म कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मासेस के लिए, स्पेशली उस मासेस के लिए जो इतनी डाउन ट्रॉडन है और दे वांट टू बिलीव समथिंग। तो इंडिया जैसी सोसाइटी जहाँ पे वी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन डे टू डे लाइफ विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिलीजन। तो इसके अंदर लेट्स से इफ there is no part of the religion or there is no belief in something supernatural, uh, do you think that that particular thing is possible, or it's something of an utopian idea which should be there? Like how do you deal with these conflicting questions? I do think it is possible. I do think it is possible to have a religious identity so that you belong to a cultural background and not believe in the supernatural claims being made in the name of that religion. But different people do it for different reasons. You mentioned people belonging to a Buddhist identity while being completely atheistic. And कुछ सालों पहले तक मैं एक क्लूलेस सवर्ण था जो कि कहता था कि यार जब तुम कन्वर्ट करते हो तो क्या बदलता है एक्चुअली, तुम्हारा ब्लड ग्रुप नहीं बदलता, तुम्हारा डीएनए नहीं बदलता। बट इट वाज पॉइंटेड आउट टू मी कि बदलता है। अगर मैं एक ऐसे रिलीजन में हूँ जहाँ मुझे इन्फीरियर माना जाता है और मैं कन्वर्ट करता हूँ एक ऐसे रिलीजन में जहाँ पे मैं एक ईगैलिटेरियन आइडेंटिटी को मतलब अफ़र्म कर सकता हूँ। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क तो पड़ता है। सो मैं डिस्टिंक्शन मेक करता हूँ कि एक व्यक्ति अपनी बुद्धिस्ट आइडेंटिटी को असर्ट कर रहा है एथीस्ट होने के बावजूद क्योंकि उसे उससे कल्चरल कैपिटल मिलता है और उसको ऑपरेशन से बचने में मदद मिलती है। और एक दूसरा व्यक्ति अपने आप एथिस्ट होने के बावजूद अपने आप को एक हिंदू आइडेंटिटी से अलग नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो सिर्फ़ अपने प्रिविलेजेस को नहीं छोड़ना चाहता। सो इसमें पावर का रोल है, इसमें पावर स्ट्रक्चर्स का रोल है। नहीं, ये वाला पॉइंट किस तरह से था कि हिंदू आइडेंटिटी हुँ। और एथिज्म का, लाइक कैन यू एलोबरेट ऑन दैट? कुछ लोग कहते हैं ना मैं एथिस्ट हूँ पर फिर मैं भी अपने आप को हिंदू कहता हूँ और मैं अच्छा, हिंदू ओके। रिचुअल्स को मानता हूँ वगैरह वगैरह। अभी कुछ दिनों पहले मेरे लाइव स्ट्रीम पे किसी से बात भी हुई थी और घुमा फिरा के बात वहीं पे आ गई। वो बोला कि इट गिव्स मी कल्चर कम्युनिटी एंड बैकग्राउंड। आई सेड सो बेसिकली इट गिव्स यू प्रिविलेज। और उसको आखिर में मानना पड़ा कि वो प्रिविलेज के लिए ही कर रहा था। सो जो सोशल बैकग्राउंड है, बुद्धिस्ट बन के किसी को क्या प्रिविलेज मिलती है? बुद्धिस्ट बन के लोगों को
सिर्फ़ ऑपरेशन से मुक्ति मिलती है। और हिंदू बन के, हिंदू होने के बावजूद अपने आप को एथियस्ट कहने से होता ये है कि आप बस अपने आप को उस कल्चरल पावर से दूर नहीं करना चाहते जो आपके धर्म ने, आपकी कास्ट आइडेंटिटी ने आपको दी है। सो मैं इसमें एक डिफरेंशिएशन करता हूँ। एक रिलीजियस आइडेंटिटी का होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप एथियस्ट नहीं हो सकते, बट यहाँ पे 2 साइड्स हैं जिसके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है और वो 2 साइड्स को समझने के लिए पावर स्ट्रक्चर्स को समझना ज़रूरी है। एक 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 और कुछ रिसेंटली कोई एथियस्ट ही था क्या जिसने बोला था कि आई एम अ कल्चरली क्रिश्चियन, सो आई लाइक द हाँ, बेल्स रिचर्ड बेल साउंड। डॉकिंस, रिचर्ड डॉकिंस, हाँ, हाँ। सो वो तो उस सबसे पे बड़ा भी मतलब रिचर्ड डॉकिंस रिचर्ड डॉकिन मैं पता है मैं जब एथियस्ट नहीं था, मैं जब विश्वास करता था, मैंने रिचर्ड डॉकिंस की किताबें पढ़ी थी और उसकी वजह से मैं बदला नहीं। मैंने सैम हैरिस की किताबें पढ़ी, मैं तब भी नहीं बदला। मैं बदला जब मैंने युवल नोआ हरारी की सेपियंस पढ़ी क्योंकि मेरे माइंड में एक डाउट था जो उस किताब ने क्लियर कर दिया। व्हाट वाज दैट? द डाउट वाज़ आई वाज़ वंडरिंग व्हाई वी बिलीव इन गॉड? इट सीम्स नेचुरल। राइट। तो सेपियंस ने ये क्लियर कर दिया कि इसका एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज था। ये सोसाइटीज को टुगेदर रखने में मदद करता था और हम इवोल्यूशन की लाइट को रिलीजन पर डालकर रिलीजन क्यों एग्जिस्ट करता है, कैसे काम करता है, इसको समझ सकते हैं। तो ये वाला फंडा मेरा क्लियर नहीं था जो उसने क्लियर कर दिया। फाइनली इट वाज द लास्ट नेल। रिचर्ड डॉकिंस का अपने आप को कल्चरल क्रिश्चियन कहना वैसा ही है जैसा कि कोई अपने आप को हिंदू एथीस्ट कहता है। आपका जो कल्चर है जिसमें आप बड़े हुए, वो आपके ऊपर एक ग्रेविटी डालता है, आपको खींचता है अपनी तरफ। रिचर्ड डॉकिंस एक क्रिश्चियन बैकग्राउंड में बड़ा हुआ और ग्रो अप किया। नाउ दैट ही इज़ ओल्ड, द रेजिस्टेंस जो उसने पहले दिखाई थी उसके प्रति, वो थोड़ा वीक पड़ रहा है। सो ही he identifies with a Christian identity more than he identifies with a Muslim identity or a Hindu identity. So he thinks नहीं मुझे चैपल अच्छे लगते हैं, चर्च अच्छा लगता है, बिकॉज़ इट्स प्राइमरीली अबाउट कम्युनिटी। राइट। सो वही होता है, हिंदुओं के साथ भी वही होता है। यहाँ का हिंदू एथीस्ट सो कॉल्ड अपने आप को पाता है हिंदू ग्रेविटी के साथ डील करता हुआ। रिचर्ड डॉकिंस अपने आप को क्रिश्चियन ग्रेविटी के साथ डील कर रहा है। और इसमें प्रॉब्लम मुझे सबसे बड़ा ये लगता है कि अगर आपका इंटेंशन सिर्फ कल्चर के साथ एंगेज करने का है, तो वो आप जो ग्लोबल कल्चर है जिसका हम सब हिस्सा हैं, लाइक हम में से किसी का भी कल्चर सिर्फ हिंदू या सिर्फ एथीस्टिक या सिर्फ क्रिश्चियन नहीं है। हम सब सम्मिलित कल्चर के प्रोडक्ट हैं, राइट? सो वो आपका कल्चर क्यों नहीं हो सकता? एक ऐसा कल्चर जो कि हर धर्म के इन्फ्लुएंस से जुड़ा हुआ है, कई सोसाइटीज़ के इन्फ्लुएंस से जुड़ा हुआ है। तो ये रिलिजन का जो मतलब पता नहीं यार, मतलब यहाँ पे अभी किसी ने रिसेंटली एक किताब लिखी, मैं नाम नहीं लूँगा, व्हाई आई एम नॉट एन एथीस्ट। सो दैट पर्सन वाज़ नोन एज़ अ वेरी प्रोमिनेंट इंडियन एथीस्ट and he's writing why I'm not an atheist. Apparently he went through all religions all and resisted all religions, and in the end he came to the conclusion that his religion was best. मैं हर हफ्ते ऐसे लोगों से मिलता हूँ। मैं मुसलमान परिवार में पैदा हुआ, मैंने रिलीजन को स्टडी किया एंड आई केम टू द कंक्लूजन दैट इस्लाम इज बेस्ट। मैं क्रिश्चियन परिवार में बड़ा हुआ और मैंने रियलाइज किया कि क्रिश्चियनिटी इज द बेस्ट। हाउ हाउ कन्वीनिएंट कि तुमने सब कुछ पढ़ा एंड यू केम टू द कंक्लूजन जो पहले तुम्हारा परिवार मानता था वही सही था। तो ये एक शशि थरूर ने भी लिखी है, व्हाई एम हिंदू। व्हाई आई एम हिंदू, या कांचाइला की बुक का काउंटर था एक तरह, मतलब नहीं अरे था। वो फॉर्मेट सबने पिकअप कर लिया। कांचा इला ने लिखा व्हाई आई एम नॉट अ हिंदू, शशि थरूर ने लिखा व्हाई आई एम अ हिंदू, मैंने एक लिखा व्हाई आई एम नॉट ए मैंने एक वीडियो बनाया व्हाई आई एम नॉट अ हिंदू एथीस्ट। सो ये फॉर्मेट काफ़ी पॉपुलर है। अच्छा, क्योंकि उसमें एंड में उन्होंने शशि थरूर ने शायद बाबा साहेब के बारे में भी कुछ उन्होंने लिखा है कि शायद ऐसा कुछ है उसमें, टॉप लाइक 5 गुड थिंग और 10 सम लिस्ट गुड थिंग्स अबाउट बाबा साहेब, तो उसमें लिखा इन द एंड ही चोज इंडिक रिलीजन, सो विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। बुद्धिज्म के लिए ही वो हाँ, सही उठा के क्या चल है, दिया, कुछ कुछ भी अप्रोप्रिएट उल्टा कर लिया सीधा। आराम से। तो, तो बट बाकी हाँ सारी चीज़ें मतलब जो उन्होंने कही उसको इग्नोर कर दो। वो वो एक सारा चीज़ पे इग्नोर फोकस कर दिया, करो, वही वही इंडिक लास्ट का। इंडिक रिलीजन बोल दो उसको। वो आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी है, खैर ये सारी फिलॉसफी। एक इसमें सैम हैरिस का, लाइक यू नेम्ड, सो आई वाज आल्सो वंडरिंग कि uh, अभी प्रेजेंटली अगर लाइक इफ समबडी वांट्स टू dwell deeper into the concepts of atheism, like what can be the good starting point for someone who's totally clueless and want to understand? See, I don't actually understand that question, and it's not even because you have asked it in a complicated way. You haven't, but everyone keeps asking this. और मुझे लगता है कि एथीज़्म में घुसने का सबसे सरल, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड गेटवे है
Do you know if God exists? If you don't, why do you believe it? But there can be possibility कि किसी दिन दिख गया. How do you know there can be a possibility? Maybe there can't be. We don't I know mean, both anything. both possibilities are there. That's the point. No, if see, this is where language fails us. People say anything is possible, and that is just not true, because you can't say that. It's a claim. You If you're saying anything is possible, you are excluding the possibility. Again, language is weird, that maybe some things are not possible. We have zero understanding of how the universe, most of the universe, right? On the basis of that zero understanding, we are coming to so many conclusions about it. We don't know if it is possible, we don't know if it is impossible, we don't know anything, right, about God. So how do we come to the conclusion that God exists? It is usually for one or two reasons. One, childhood indoctrination. आप एक रिलीजन को फॉलो करने वाले फैमिली में पैदा हुए, बड़े हुए, आपने उसी को मानना शुरू कर दिया. बी, जब आप बड़े हुए, आप पढ़े लिखे बने, आपको समझ में आया कि ये सब बकवास है, पर आपकी चाइल्डहुड इमोशनल रीज़न्स ने आपको बेबस किया इस बात के लिए कि मैं इसके लिए जस्टिफिकेशंस ढूँढूँ. इसलिए अब आप अपने रिलीजन को साइंटिफिक बताते हो, रैशनल बताते हो, जो कि वो है नहीं. क्योंकि प्राइमरी क्वेश्चन वही है, डू यू नो? एंड द आंसर इज़ नो, यू डोंट. एंड इफ यू डोंट, देन व्हाई डू यू बिलीव? But let me ask a counter question. Are you also हुँ. open to the possibility that there might be, or in the future, or are you या, आई or एम. you're open to that? आई एम, एब्सोल्युटली. Like if there is something you encounter, then you might change your opinion. Something like that. Like I'm just trying to. एब्सोल्युटली, मैं हर हफ्ते लोगों Yeah. से यही कहता हूँ. मैं एक एग्नोस्टिक एथियस्ट हूँ. मेरा पोज़ीशन ये Mm. है कि आई डोंट नो, देयरफॉर आई डोंट बिलीव. If knowledge turns up, why would I not believe? But it has to be knowledge. It cannot be speculation, imagination, or random claims based on things we already know are false. I And am what can open to the possibility. I'm open to the possibility of God existing. If the theist is open to the impossibility of God existing, और ये कोई नहीं मानता. कोई नहीं कहता कि ये तो हो. मैं अगर बोलूँगा कि do you think it is impossible that God exists? Nobody will agree with it. But mm, यहाँ पे एक subtle bias है. कि everyone wants to think, everyone regardless of how atheistic they are wants to think that it is at least possible. But how open are people to God being impossible? ah, that's a good way of thinking. Yeah. But since like in the online world, since you make videos about this whole possibility impossibility of God might not exist, what kind of responses have you been getting since the start, and have things changed in the way of your journey, like the creator's journey? Like हाँ, people became absolutely. I little mean, smarter in the स- like when you started. सबसे बड़ा like people, you're asking if I managed to change people's minds. No, like the responses, like what? No, no, I'm not talking about you. Like how you observe people, like जो जो लोग आपके वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं, आपको रिएक्ट कर रहे हैं. Do you think their behavior और वो थोड़ा सा कुछ बदलाव आया है, like so that we can also understand कि कंट्री के अंदर भी कुछ चेंज हो रहा है, या फिर हम इतने ही कंजर्वेटिव हैं जितने हमेशा से ही थे? आई थिंक हर चीज़ का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, राइट? सो अगर मैं स्केप्टिसिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर कई यूट्यूबर्स और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो नेचुरली कुछ लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा. और चूंकि उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है और इसका एविडेंस है हमारे पास, उनको जिन लोगों ने धर्म के अंदर रखा है, उन लोगों की तरफ से रिस्पॉन्सेज भी बढ़ रहे हैं. सो मैं अपने इम्पैक्ट को इस बात से मेजर करता हूँ कि मुझे डायरेक्टली कितने लोगों ने कहा कि आपकी वजह से मेरा माइंड चेंज हुआ है, और ये बहुत मतलब ये अच्छा खासा नंबर है. मैं नहीं कहूँगा कि मैंने करोड़ों लोगों के माइंड बदल दिए हैं, बट आई डू गेट सिग्निफिकेंट फीडबैक फ्रॉम पीपल हू से, या यू हैवंट चेंज माई माइंड कंप्लीटली, बट आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट विथ मोर रैशनैलिटी. एंड दैट आई थिंक इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. मुझे पता है हम लोग धर्म को खत्म नहीं कर सकते, मैं धर्म को वाइप आउट नहीं कर सकता, पर मैं धर्म की वैल्यू घटा सकता हूँ. और धर्म की वैल्यू घटाना मतलब उसको सरकार से निकालना, उसको गवर्नेंस से निकालना, उसको साइंटिफिक लेबोरेटरी से निकालना, उसको ऐसी जगहों से निकालना जहाँ पे वो बिलॉन्ग नहीं करती. और ये हमने किया है. मैं बात कर रहा था प्रणव के साथ कुछ दिन पहले, और हमने बात की इस बारे में कि जब से हमने ये शुरू किया, ऐसे कितने कंटेंट क्रिएटर्स आ चुके हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, जो अब डिबंक्स वगैरह करते हैं.
तब तो दिखता नहीं था, दूर-दूर तक नहीं दिखता था। मतलब एक के ऊपर एक झूठ बोले ही जा रहे हैं लोग, रैंडम वाइल्ड क्लेम्स किए जा रहे हैं। अब कम से कम उन लोगों को थोड़ा-सा हेजिटेशन होता होगा कि कहीं कोई इसको पकड़ ना ले, थोड़ा एक्स्ट्रा रिसर्च कर लेता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन मैं इस ये भी बड़ा क्यूरियस हूँ कि जब एक पर्टिकुलर लेट्स से मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का कोई है, लड़का या लड़की, तो उनके लाइफ में ऐसा क्या पर्टिकुलर मोमेंट आता है दैट दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग इट, और बिकॉज let's say if somebody is from upper caste or savarna community, then they are getting a lot of privilege through those rituals or through those activities. So what could be that starting point कि नहीं यार ये गलत है? Like one point can be obviously the religion की वजह से जो violence और वो सारी चीजें हमको दिखती हैं वो हो सकता है, but what can be the internally कि हाँ भाई this I have to challenge this, I have to change myself and I have to change my society. आई थिंक इट काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ बॉयल्स डाउन टू पावर स्ट्रक्चर्स अगेन। लाइक एक प्रकार का व्यक्ति तो वो है जिसको रिलिजन की वजह से ऑपरेशन सहना पड़ा, और ये अक्सर औरतें निकलती हैं। ये अक्सर वो लोग निकलते हैं जिनको लगा कि यार व्हाई एम आई नॉट अलाउड टू डू दीज़ थिंग्स सिंपली बिकॉज़ दिस रिलिजन डिमांड्स इट। तो उनका हेजिटेशन बढ़ता है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड एट हाउ मेनी वुमेन एक्चुअली डोंट बिलीव इन द थिंग्स दैट दे आर डूइंग। दे डोंट से इट बिकॉज़ उनके ऊपर कल्चरल प्रेशर्स हैं। पर एक दूसरा कैटेगरी है टीनेज बॉयज़, जो कि अक्सर एथियस्ट बनते हैं सिर्फ़ खुन्नस की वजह से। वो दीज़ आर द पीपल हू विल लीव कमेंट्स सेइंग प्राउड टू बी एन एथियस्ट एंड रिलिजियस पीपल शुड बी सेंट टू मेंटल असाइलम्स एंड स्टफ। और मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ बेस्ट अप्रोच। दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच टू चेंज पीपल्स माइंड बिकॉज़ यू आर कट्टर पुशिंग देम एथिस्ट, अवे। राइट, कट्टर या एथिस्ट। कट्टर एथियस्ट, हार्डकोर एथियस्ट। अभी किसी का मैं कमेंट का जवाब दे रहा था कि मैं एक हार्डकोर एथियस्ट हुआ करता था, पर अब मैं जानता हूँ कि भगवान है, हिम्मत है तो मुझसे डिबेट कर। मैंने बोला आ जा सैटरडे को 8 बजे, और अक्सर वो लोग नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों नहीं आते हैं। सो वो पूजा का टाइम होता है सैटरडे। हाँ? पूजा का टाइम होता है सैटरडे 8 बजे। हाँ, पूजा का टाइम होता है सैटरडे। सो हर किसी का अलग रीज़न होता है। कुछ लोग सिंपली मेरी तरह एक मतलब ओके आई डोंट नो देन व्हाई शुड आई बिलीव इट पोज़ीशन से शुरू होते हैं। कुछ लोग इस बात को रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि ये बकवास है, इस रिलिजन में मेरे बारे में जो बात कही गई है वो झूठ है, एंड देयरफॉर वो सब बाकी बातें जो कही जा रही है वो भी झूठी होंगी, मैं थोड़ा स्केप्टिकल बन जाता हूँ। अ, और अनफॉर्च्युनेटली कुछ लोग सिर्फ़ कूल बनने के लिए भी करते हैं। जो कि मतलब जो कि मतलब अपने धर्म के प्रिविलेजेस को छोड़ना नहीं चाहते, पर अपने इंस्टाग्राम बायो पर रिचर्ड डॉकिंस का फ़ोटो लगाना चाहते हैं, इसलिए भी बन जाते हैं। एक विमेन वाला जो पॉइंट है ना, इसमें मेरा बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा ओपिनियन है अबाउट हुँ, रिलीजन एंड विमेन। और वो इसलिए हुँ, कि वो मेरे पर्सनल एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ कि एक ये तो है कि ऑब्वियसली किसी भी रिलीजन के अंदर विमेन, जो उनके रिचुअल्स और जो उनकी भी तौर तरीके हैं, उससे विमेन ऑप्रेस होती हैं, इसमें कोई हुँ, दो राय नहीं है। हुँ, लेकिन एक विमेन के अंदर, जैसे मैं राजस्थान की बात करूं जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि रिलीजियोसिटी जो है और रिलीजन को फॉलो करने का, रिचुअल को फॉलो करने का जो उनके अंदर पैशन है, वो हुँ, कहीं ना कहीं मेल से भी मुझे ज़्यादा दिखाई दिया। और जिसको मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि इतना क्यों हुआ। जैसे हमारी फैमिली के अंदर भी रिलीजन का इतना कोई खास वो था नहीं, और मेरे कई रिलेटिव्स हैं वो समझते भी नहीं है ब्राह्मणिकल रिचुअल्स और ये सारा। बट पिछले 13-14 साल के अंदर स्पेशली हमारी फैमिली की जो वुमेन्स है वो रिलीजन को इतना ज़्यादा स्ट्रांगली मानने लगी, उन्होंने रिचुअल और ये सब शुरू कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये सब करने से सोसाइटी के अंदर कुछ वो प्रोग्रेस कर जाएंगी, कि रिलीजन को या आप अगर मान रहे हो और बहुत स्ट्रांगली आप मान रहे हो, तो दे विल हुँ, प्रोग्रेस एंड दे, सिंस इट इज टॉट एज समथिंग कि ये बहुत ही एक तरह की एस्पिरेशनल चीज़ है, आप ये सब करोगे तो आप कुछ आगे बढ़ जाओगे, तो वो और ज़्यादा इसको करने लग गए और उनको लगा कि ये एक प्रेस्टिजियस चीज़ है, इसको करने से हाँ, आप बिल्कुल। अच्छे इंसान बनते हो, ऐसे करते हो। तो उनके अंदर फिर ये शुरू हुआ, और फिर इसके बाद में एक कंपटीशन हो गया कि जो नहीं करता है उसका मतलब वो अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ, या फिर अब वो सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस के अंदर उसने अपना स्टैंप लगाया नहीं। तो इट बिकेम हुँ, लाइक दैट। सो दैट हुँ, हुँ, सो बिकॉज ऑफ दैट होल आइडिया ऑफ रिलीजियोसिटी शॉट अप, जबकि वो खुद ऑप्रेस्ड है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर, येस, लेकिन वो हो येस। गया। और उन्होंने फिर रिलीजन को इस तरह से यूज किया कि वी कैन यूज द रिलीजन टू असर्ट द स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, आप घर के अंदर हो, आपने रूल्स बना दिए कि
हर टाइम मेल रूल बनाता है ना कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हुँ। बट घरों में मैंने देखा है कि अगर कुछ वुमेन रिलीजियस है तो उन्होंने रूल्स बना दिए कि नहीं ये होना चाहिए, आप नॉन-वेज नहीं खा सकते, आप ये नहीं कर सकते, अब आपको पूजा करनी है, आप क्या नहीं कर रहे। तो उन्होंने एक रिलीजन के थ्रू एक वियर्ड काइंड ऑफ डोमिनेंस भी इसके अंदर देख लिया, which is very या, या। like psychologically it's very weird how we understand it, but it's just my observation how I am looking at it. And despite of being यस, oppressed by the religion, you are still um, finding some value in it to navigate through life, which is matlab, ये तो इंटरनलाइज़्ड मिसोजिनी टाइप का है ना ये। मतलब हाँ हाँ रिलिजन अस्क्राइब्स पीपल्स रोल्स कि तुम डिफेंडर, प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर हो, तुम केयर टेकर और कुकर हो और अगर तुम उन रूल्स के खिलाफ रेबेल करोगे, तो यू विल फेस स्टिग्मा इन सोसाइटी। बट इफ यू फिट इनटू दोज़ रोल्स जबरदस्ती अपने सपनों को मार के, देन यू विल गेट सम बेनिफिट्स व्हिच इज़ एक्सेप्टेंस एंड मेबी ग्रोथ। तो ये देखा है जेंगो अनचेन्ड? yeah, one of my favorite. उसमें सैमुअल एल Yes, 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 या उनका कैरेक्टर देखा है? yes, yes, yes. Yeah. So it is Yeah. something like that. He Hmm. realized that he was in a system where he cannot grow. So he completely embraced the system. And we have people like that in India also. There are like, Muslim members of the BJP or Muslim members of Godi media who will will advocate and amplify the Islamophobic narrative so that they get to be the pet, like the local, the token character. उस सिस्टम के अंदर एक प्रिविलेज मिल जाए, Yeah, yeah. इमेजिन प्रिविलेज बेसिकली। या लाइक ऐसे क्योंकि हमारा जो है, क्या उसका नाम है, क्या रामास्वामी यूएस प्रेसिडेंशियल रेस में था, जो रिपब्लिकन पार्टी में है? विवेक रामास्वामी, विवेक रामास्वामी, या ही इज़ ठीक है? लाइक दैट। उसके देखे मैंने काफ़ी सारे स्पीचेस वगैरह बीच में। अभी रिसेंटली तो एन कोल्टर के साथ इंटरव्यू कर रहा था, एन कोल्टर ने उसको सीधा-सीधा मुँह पे बोल दिया, आई वोंट वोट फॉर यू बिकॉज़ यू आर इंडियन। एंड ही टूक इट आल्सो। एंड किसी ने कमेंट भी किया था कि गुड थिंग अबाउट देम इज़ दैट इंडियन ही था वो, कि एटलीस्ट दे आर हाँ। ऑनेस्ट। मतलब आप व्हाइट सुप्रीमेसी की इतनी चाह हाँ, रहे हाँ, हो एग्ज़ैक्टली। जो लिबरल रेसिस्ट होगा वो मुँह पे नहीं बोलेगा पर उसके एक्शंस में दिखेगा। तो एटलीस्ट दे आर ऑनेस्ट सो वी लाइक इट। या और वो इंडिया में कल रखा था ना, कितने लोग कहते हैं कि लिबरल ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि वो अपना जातिवाद दिखाते नहीं है, पर उनके एक्शंस में दिखता है। खैर वो तो एक अलग अलग तरह की डिबेट है। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन और मैं आई वांटेड टू आस्क, लाइक आर यू लाइक childhood से were you like little skeptical of things? Were you into rituals, religion, or were you always like I'm exploring? सो आई डोंट नो, फॉर्च्यूनेटली और अनफॉर्च्यूनेटली मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहा। सो मेरी जो Mm. एक्सटेंडेड फैमिली है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रिलीजियोसिटी था, पर मैं उनके साथ रहा नहीं और इसीलिए मेरे गले पे कभी ताबीज़ नहीं लटका और रिलीजन को फ़ॉलो करने का जिस हद तक मुझे मतलब कहा जाता था, मैं कर लेता था, पूजा-वूजा होती थी। एग्जाम में तो डर लग लग के करते होंगे ना कुछ नहीं, नहीं, बिल्कुल एग्जाम? नहीं। नहीं। बिल्कुल नहीं, नहीं। वो कल्चर था ही नहीं। तू पढ़ाई करेगा तो तू पास होगा, तू पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल होगा, ये बहुत क्लियर था पिताजी की तरफ से। हमारे यहाँ तो ओम तो लिख के आ जाते थे कॉपी पे। कुछ नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं था। नहीं। मैं एक्चुअली आई ग्रो अप इन अ गवर्नमेंट कैंपस। माय डैड वाज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड वहाँ पे देश के हर हिस्से के लोग थे। सो द कल्चरल डाइवर्सिटी प्रिवेंटेड इट फ्रॉम बिकमिंग अ रिलिजियस साइलो एंड आई सपोज़ दैट हेल्प्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मेरा रिलिजियोसिटी जो था मतलब वेग था। मुझे लगता था गॉड है, पर अगर नहीं है तो भी चलेगा वैसे करके। द रीज़न आई एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग मोर रिलिजियस वाज़ व्हेन आई लेफ्ट इट। जो कि एनआरआईज़ के साथ होता है, जो कि इंडिया के बाहर जाके और ज़्यादा हिंदू बन जाते हैं। तो मैं जब उड़ीसा से बाहर निकला और मुंबई गया, तो वहाँ मुझे अपना कल्चरल के टोकन दिखने बंद हो गए। मेरे अंदर से आवाज़ आने लगी थोड़ा अपने आप को अटैच कर वगैरह। सो मैं जाके बुक स्टोर से पेंगुइन की किताबें उठाने लगा जो कि हिंदुइज़्म के बारे में थी, जो कि मोस्टली एनआरआईज़ ने लिखी थी अपने बच्चों को क्रिश्चियन बनने से बचाने के लिए और मैं उसको निगल गया पूरी तरह से। और दैट इज़ व्हेन माय बेंट टुवर्ड्स रिलिजन एक्चुअली इंक्रीज़्ड एंड माय मूवमेंट टुवर्ड्स द राइट विंग आल्सो इंक्रीज़्ड और फिर उससे निकलने में लगे और 10 साल। जैसे रिलीजन की हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं जैसे बचपन से था तो इतना रिलीजन को मैंने, लेट मी रिमेम्बर, रिलीजन का ऐसा कोई प्रभाव ऐसा कुछ नहीं था स्ट्रॉन्ग, लाइक देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग, बट
I think during exam, obviously, like you used to get very scared because of the exam, and since the exam is the biggest thing in Rajasthan, board, merit और ये कि आप पागल हो जाओगे एग्जाम जब आते हैं क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा है। तो मैंने ये भी देखा है कि मेरे भी आसपास के बहुत सारे लोग थे, वो इतना नहीं थे, बट एग्जाम का डर के चक्कर में मंदिर के चक्कर और ये सब करना उन्होंने शुरू कर दिया। और दूसरा, राजस्थान में भूतों की कहानियाँ बड़ी फ़ेमस है। लाइक इट्स घोस्ट घोस्ट की बहुत सारी जगह है वहाँ पे। तो ये दूसरा था जिसके चक्कर में लाइक आप चल रहे हो अकेले में और आपको डर लग रहा है कि यहाँ पे घोस्ट हो सकता है, देन यू टर्न टू रिलीजन। सो दीज़ आई थिंक दीज़ 2, सो बेसिकली इस तरह की जो सिचुएशन है जिसमें कि यू थिंक देयर इज़ अ डेंजर एंड मेबी देयर इज़ नो एस्केप, लाइक मेबी nothing can escape you through that beside having some kind of an irrational faith of a universal justice system. So then Yeah. you So like religion feeds on fear. fear. So like Yeah. atheist फिर क्या करता है? ओ माय atheist, ऐसे कुछ डर डर लगता है तो like what to do? See, Like here's the भूत thing. भूतों Yeah, का is there? Do atheists believe in ghost, by the way? some do, some do. Atheism अच्छा। का मतलब इसीलिए आई थिंक द बेटर टर्म इज मटीरियलिस्ट और रैशनलिस्ट। हम्म। एथिस्ट का Yes, रिश्ता सिर्फ rationalist गॉड के is a साथ bit. होता है, राइट? या Yes, सो yes. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एथिस्ट इतना मैटर नहीं करता। मटीरियलिस्ट इज अ बेटर टर्म आई पर्सनली थिंक, क्योंकि वो साइंटिफिक भी है। मटीरियलिस्ट एज एन समन हु डज नॉट बिलीव मैटर एज अपोज टू स्पिरिट। Okay. स्पिरिचुअलिस्ट का उल्टा मटीरियलिस्ट वैसे। A pragmatic would also be a good प्रैग्मेटिक word. रिलीजियस लोग प्रैग्मेटिक हो सकते हैं, रैशनल भी हो अच्छा। सकते हैं, राइट? Okay. सो मटीरियलिज्म इज अ फिलॉसफी, फिलोसॉफिकल मटीरियलिज्म इज अ फिलॉसफी। Okay. Okay. In that Yeah. sense. Philosophical naturalism, philosophical materialism, where you think that nature is all that exists and anything else has to be demonstrated. Okay. Yeah. So मुझे नेचुरलिस्ट टर्म अच्छा लगता है, मटेरियलिस्ट टर्म अच्छा लगता है, पर मैं एथियस्ट से बोलता हूँ क्योंकि लोगों को इंस्टेंटली समझ में आ जाता है मैं क्या हूँ। बट ये जो नीड है ना गॉड को बुलाना एग्जाम पास करने के लिए, इमेजिन ऐसा कोई है जिसने जिंदगी भर में गॉड को कभी सुना ही नहीं है, वो गॉड को नहीं बुलाएगा। इसीलिए कई लोग ये पूछते हैं कि तुम किसे बुलाते हो? उनको लगता है कि हर किसी को ये नीड है, पर नहीं है। मुझे तो कभी नहीं मतलब मैं जब विश्वास करता था भगवान में, तब भी मुझे नहीं लगा कि भगवान मुझसे एग्ज़ाम पास में मदद करेगा। मुझे नहीं लगता था ऐसा। मैं एरोप्लेन में लोग कहते हैं ना जब प्लेन हिलने लगता है तो सब गॉड को बुलाते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता। ये एक असम्पशन है जो कि गलत असम्पशन है। सबको नहीं होता ये। एरोप्लेन वाला तो आप जैसे साइंस को आप समझोगे तो आपका डर हुँ, थोड़ा कम हो जाएगा कि चांसेस बहुत ही कम है। जैसे मेरे को पहले बहुत डर लगता था, फिर मैं साइंटिफिकली उसको समझा, डेटा पॉइंट के थ्रू समझा कि मैंने कहा हाँ ठीक हुँ। है, इट्स नॉट, You एवरीथिंग create a टेकन society केयर ऑफ। where there is more knowledge, more access to knowledge and less fear, एंड रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम होने लगता है। रिलीजन फीड्स ऑन फियर। एक बच्चे के लेवल पे वो मतलब एग्ज़ाम फेल होने का डर, एक पॉलिटिकल लेवल पे किसी और धर्म के लोगों का डर जो कि पॉलिटिशियन फीड करते हैं। अ, अगर सोसाइटी फियरलेस होगी, अगर सोसाइटी ऐसी बनाई जाएगी जहाँ हर कोई अपनी ज़िंदगी डर के बगैर जी सके, तो हमको साफ देखने को मिलेगा कि रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। पर इसीलिए ये लोग होने नहीं देते। डराते रहते हैं किसी न किसी चीज़ को लेके। बट हाउ लाइक इस तरह के रैशनल आइडियाज, चलो ये लास्ट क्वेश्चन होगा रैशनल वाला, वो मैं लास्ट में पूछूंगा। बट एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था कि आजकल का जो टाइम है जिसके अंदर नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली एक रिलीजन का एक अलग ही राइज हुआ है, नॉट जस्ट रिलीजन बट एक अल्ट्रा रिलीजियस एक सेंटिमेंट जो है पूरे वर्ल्ड ओवर, वो एक एक्सट्रीम राइज के अंदर है। और इसी के चक्कर में यूट्यूबर्स जो हैं, यूट्यूब पे भी आप देखो इतनी सूडो साइंसेस भरा हुआ है, पॉडकास्ट भरे हुए हैं सूडो साइंसेस से, और कंटेंट बन रहा है और लोग करोड़ों कमा रहे बाय फीडिंग सूडो साइंसेस। इतने सारे पॉडकास्ट दैट आई डोंट इवन नीड टू नेम इट बिकॉज एवरीबडी नोस कि इतने सारी ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब के बीच में टू start a channel to promote rationalism, to promote some kind of common sense, तो उसके अंदर how do you see this journey, especially in terms of let's say monetization, in terms of also reaching your voice to the audience, क्योंकि ये जो पूरा स्पेयर है वो तो उन लोगों से भरा हुआ है ना कि जो सूडो या, साइंसेस या, या।
या करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्यूडो साइंस करके ही पैसा कमा सकते हैं। मुझे लगता है कि स्यूडो साइंस करके पैसा कमाना एक लो हैंगिंग फ्रूट है, जो जल्दी आ कि वो जाता है। लोग करते हैं। जल्दी आ जाता है प्लस खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस बैठो कैमरे के सामने कुछ भी बको। रिसर्च तो करनी नहीं ना, कुछ भी मतलब मैं ऐसे मतलब हाँ, ऐसे लोग हैं जिनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जो रिलिजियस कंटेंट बनाते हैं, पर दे यू कैन काउंट देम ऑन द फिंगर्स ऑफ वन हैंड। ज़्यादातर जो कि धर्म-धर्म करते रहते हैं, उनको उनको धर्म के बारे में भी कुछ नहीं पता। दोस्तों पता है करके ऐड एनीथिंग यू मेड अप, राइट? सो बहुत से लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें पैसा है और वो सस्ता है, आराम से कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि स्केप्टिकल कंटेंट बनाने पर आप अपने चैनल को या अपने सोशल मीडिया को ग्रो नहीं कर सकते। मेरा चैनल सबसे ज़्यादा ग्रो होना शुरू तभी हुआ जब मैंने ये किया, व्हिच टेल्स मी वन थिंग एंड दैट इज़ दैट इस प्रकार के कंटेंट के लिए लोगों के अंदर एप्रिसिएशन है। हम ये मान लेते हैं कि धार्मिक कंटेंट, सुपरस्टिशियस कंटेंट काम कर रहा है, इसीलिए कोई और कंटेंट काम नहीं करेगा। पर जब सुपरस्टिशियस कंटेंट एक सैचुरेशन पॉइंट तक पहुँचता है और लोग तंग आने लगते हैं कि हर रोज़ सुबह से रात तक यही बकवास मिल रही है मुझे, नेशनल चैनल्स पे मिल रही है, टीवी पे मिल रही है, हर जगह मिल रही है। नेता बक रहे हैं ये सब। तो व्हेन दे सी समवन काउंटरिंग इट, दे फील दैट इट इज़ फुलफिलिंग अ यूज़फुल फंक्शन इन सोसाइटी। सो किया जा सकता है। प्रणव इज़ एन एग्ज़ाम्पल वो कर रहा है। बहुत से लोगों ने शुरू किया कर दिया है अब। मैं खुश हूँ कि यूट्यूब पे मुझे रेगुलर लेवल पे डिबंक्स दिखते रहते हैं अब, कि ये ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, दीज़ आर द फैक्ट्स। इट डज़न्ट टेक मच एफर्ट, बट इट डज़ टेक स्लाइटली मोर एफर्ट देन जस्ट पेडलिंग एनी नॉनसेंस यू लाइक। आजकल ये भी कंटेंट आता है जैसे इंस्टा रील पे, अगर आप श्री कृष्ण को अगर आप श्री कृष्ण जी को पसंद करते हैं तो ये वीडियो लाइक किए बिना नहीं जाओगे, आपको कृष्ण जी की कसम। मैंने कहा ये क्या जबरदस्ती लाइक करवा रहे हैं? बोलता आपको इमोशनल इमोशनल कसम है, ब्लैकमेल। कसम है आप लाइक करो। मतलब फेसबुक तो ये फेसबुक जब वीडियो शुरू किया था ना, फेसबुक वीडियो, तब हाँ, उनका एक पॉलिसी था कि यू कैन नॉट टेल पीपल टू लाइक योर वीडियो। अच्छा। हाँ, मतलब अभी ऐसा तो इनका तुम गाली दे अभी के शायद लाइक नहीं करवा है। देते हैं, कुछ गाली दे के हाँ, या गिल्ट दे के या फिर कुछ बददुआ दे के किया या कि नहीं किया, तो बददुआ देख हुआ लो तो इस लाइक चक्कर में नहीं करवा करोगे देते तो कुछ हो सकता है। हैं। तो, तो वो वही मैं कह रहा हूँ, चारों तरफ में मतलब इंटरनेट पे इतना ज्यादा सूडो साइंस भरा पड़ा है जिसकी कोई हद नहीं है। और लेकिन इसके अंदर भी जैसे एक 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 क्लासिक क्रिटिसिज्म जो होता है रिलीजन की, जब हम बात करते हैं तो जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इट्स वेरी इजी टू लेट से क्रिटिसाइज, यू माइट आल्सो कमेंट में बहुत सुने होंगे इस तरह के कि हिंदुइज्म को तो आप कर देते हो बड़े इजीली, इस्लाम पे आप नहीं करते क्योंकि उसमें आपको डर लगता है, या फिर उस पे नहीं करते क्योंकि उसमें आप करोगे तो आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। इज दैट some kind of a valid argument? How do you see it? तो मेरा आमतौर पे रिस्पॉन्स एक होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करता हूँ। मैं इस्लाम को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज़ करता हूँ। मैं हर हफ्ते कम से कम आजकल तो बहुत मुसलमान आ रहे हैं लाइव स्ट्रीम पे, हाँ, उनसे डिबेट भी करता हूँ। हाँ, मैं सस्ते डायलॉग नहीं मारता। मैं तुम्हारे धर्म को क्रिटिसाइज़ करने के लिए मुझे उसको इंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पोलाइटली बात करता हूँ लोगों से और अक्सर जो ये लोग आते हैं, वो चाहते हैं कि मैं सस्ते जोक मारूँ। अरे! इसकी वाइफ़ के बारे में मार दे, उसको पीडोफाइल बोल दे, क्योंकि उनकी और समझ में कुछ आता नहीं है। दैट इज़ द लेवल ऑफ देयर कॉम्प्रिहेंशन। दैट्स द फर्स्ट थिंग। मैंने एक और अच्छा खासा वो पूरा खुद भी 3 ओपन नहीं है एपिसोड कि वो सिर्फ उन्हीं को एग्ज़ैक्टली। क्रिटिसाइज करो जो हाँ, कमेंट बस। करने वाले हैं, वो भी ये नहीं। ज़्यादातर जो कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको इस्लाम के बारे में गालियाँ सुननी है। उनको एंटरटेनमेंट चाहिए और मैं उनको कहता हूँ, मैं तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बैठा हूँ। इफ यू हैव एन आर्गुमेंट, टेल मी, आई विल रिस्पॉन्ड टू इट। इफ एन इस्लामिक पर्सन हैज़ मेड एन आर्गुमेंट दैट यू वांट मी टू रिस्पॉन्ड टू, मुझे वो आर्गुमेंट बताओ। मुझे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मत दो, इस्लाम के बारे में बात कीजिए, 4 पेज लिखिए, आपको 20 मार्क मिलेंगे। मुझे वो नहीं करना है। और दूसरी बात ये कि ये सवाल अमेरिकन एथियस्ट को आता है कि तुम इस्लाम और हिंदुइज़्म के बारे में क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो सिर्फ़ क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तानी एथियस्ट को आता है कि तुम हिंदुइज़्म और क्रिश्चियनिटी के बारे में क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो सिर्फ़ इस्लाम के बारे में बात करते हैं। एक समाज में एक धर्म ज़्यादा पॉपुलर है, तो ज़्यादातर एंटी धर्म आर्गुमेंट उसी के बारे में होंगे ना। इंडिया हिंदू मेजॉरिटी है, तो इंडिया में हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज़ करने वाले आर्गुमेंट ज़्यादा उत्पन्न होंगे, नेचुरली। और ये हमेशा यही होता है। ए एक एथियस्ट है, वो हर धर्म को क्रिटिसाइज़ करता है
उसको डीलेजिटिमाइज़ करने के लिए कोई आके बोलेगा तुम्हें तो इस्लाम को तुम कुछ नहीं बोलते। बोलता हूँ, एक तूने मेरा चैनल देखा नहीं है, जहाँ पे मैं करता हूँ। हर हफ्ते करता हूँ, रेगुलरली करता हूँ। ये जो वीडियो पे तू कमेंट कर रहा है इसमें भी किया है। कई बार तो ऐसा होता है, मैं एक वीडियो बनाता हूँ इस्लाम के बारे में, उसके कमेंट में आके कोई बोलेगा कि इस्लाम को क्यों नहीं बोलता? मतलब तूने वीडियो भी नहीं देखा है। नहीं, वो उसको मैंने जो नोटिस किया, जैसे मैंने भी कई बार मैं बाबाओं का वो सब डालता रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बाबा बहुत फनी है, तो हुँ, वो देख के मैं उनके कुछ फनी क्लिप्स एक दो बार डाले, तो वियर्ड कमेंट कि इस्लाम का भी करो भाई किसी दिन। मैंने कहा अरे ये तो फनी कमेंट, फनी चीज है, मैं तो कुछ क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा, मतलब ये तुम इन बाबाओं को मानते हो जो क्या उल्टी सीधी कुछ भी बातें कर रहे हैं, तो मैं उनको दिखा रहा हूँ कि ये देखो क्या बोल रहा है। तो बोले कि नहीं, तो फिर मुझे लगा कि बेसिकली इनका वो है कि दे आर एंग्री विद यू फॉर मेकिंग फन ऑफ देम। नाउ हाउ टू रिस्पॉन्ड, कि अगर वो बोलेंगे कि मैं इससे एंग्री हूँ, तो इसका मतलब आप उससे एग्री कर रहे हो जो बाबा बोल रहा है, तो वो उससे एग्री भी हुँ। नहीं कर रहे, तो उन्हें समझ नहीं आता, देन दे उसको ट्रांसफर कर देते हैं दूसरी तरफ कि आप इनके बारे में हाँ, बोलो, आप उनके बारे में बोलो। ये एक इमोशनल नीड है। एक हाँ इमोशनल नीड है। कि मुझे ऐसे कमेंट भी आते हैं कि आई एग्री विथ यू बट यू आर एन एसहोल। ये भी आता है मुझे। अच्छा, तो मतलब वो ऐसे अपने आते हैं अंदर कि से। नहीं, मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं काउंटर करूँगा एक ऐसे तरीके से जिसको वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। लाइक लिटरली आई शो देम दैट ही इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ द ट्रुथ, राइट? ऐसे कमेंट आएँगे, ये पॉइंट आउट करने की क्या ज़रूरत थी? मतलब दे कैनॉट से यू आर रॉन्ग, सो दे विल जस्ट फिक्सेट ऑन द फैक्ट दैट आई डिड मेक अ वीडियो। कि करने दो उनको, झूठ बोलने दो। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दीज़ आर प्राउड हिंदूज़। तुम जानते हो कि तुम्हारे धर्म के बारे में कोई झूठ बोल रहा है, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ और तुम गाली मुझे दे रहे हो? वो कह रहा हूँ मेंटली दे आर ट्राइंग टू समहाउ रिजॉल्व इट। मैनेज या मन की बात है, दो तरह की कॉन्वर्जेशन चल रही है, एक तो उनको हाँ, रैशनल की तरफ ले जा रहा है, और दूसरा बोल रहा है नहीं नहीं पागल है, ये क्या सोच रहा है, इधर आ इधर आ, तो दोनों कॉन्वर्जेशन को रिजॉल्व करें। तो इसलिए मैं जब भी हाँ, कमेंट देखता हूँ, मैंने से दिस गाय इज स्ट्रगलिंग बेसिकली। ही इज़ मुझे स्ट्रगलिंग बुरा या, भी या, नहीं या, लगता, मैं या, स्ट्रगलिंग विद हिज थॉट्स। यप, सो सो कॉग्निटिव बायस हो रहा है उनका, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उनका। तो इसी पे एक्चुअली मेरा एक सवाल था कि इंसान के अंदर एक रैशनल स्ट्रीक तो होती है, थोड़ी बहुत तो होती है, मेरा मेरा हुँ, ऐसा हुँ, मानना है कि हुँ, बेसिकली तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं, बट एक रैशनल स्ट्रीक या फिर रैशनलिज्म को मानने का एक नेचुरली हमारे अंदर होता भी है, कि वो शायद रिलीजन या फिर आपका जो भी बाइसेस हैं उससे वो ओवरशेडो हो जाता है। तो आपने जैसे इनिशियली रैशनलिज्म की बात कही, तो एक सोसाइटी में बड़े लेवल पे, तो वो एक पर्टिकुलर रैशनैलिटी को, हाउ टू मेक रैशनैलिटी लेट्स से कूल अगेन, या फिर बचपन से हमें एक इस तरह की चीज़ें सिखाई जाएँ कि आपको थोड़े रैशनल थॉट्स रखने चाहिए सोसाइटी के अंदर। वो भी ऐसे टाइम पे जब हमारी जो पार्टीज़ हैं, रूलिंग पार्टीज़ हैं, वो तो उल्टा ले जाना चाह रही हैं। वो कह रही हैं आप हुँ, रैशनल बनो बिल्कुल, ही मत, हाँ, आप एंटी साइंस बनो, कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट ना रखो, सोसाइटी में कुछ ना रखो। आपकी ना सिर्फ आपकी ना सिर्फ पार्टी, बल्कि ना आपके जो चैनल्स हैं, आपके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि आप रैशनल माइंड ही ना रखो। जितने भी हैं न्यूज़ चैनल भी यही बोल रहे हैं, तो ये पूरी सोसाइटी के अंदर ही वो उल्टा चल रहा है कि वो आपको बनना ही नहीं देना चाहते कि आप रैशनल माइंड रखो। तो इस सिचुएशन के अंदर जो भी लोग हैं जो इस तरह की थॉट में बिलीव करते हैं कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, हाउ कैन दे मेक चेंज कि एक एक पर्टिकुलर इनिशियल लेवल पे थोड़ा सोसाइटी के अंदर बदलाव आए, ना कि सिर्फ एक लिमिटेड लोगों के बीच में, बट एक मास लेवल पे किस तरह से बदलाव आए, तो हाउ कैन वी मूव अ स्टेप टुवर्ड्स दैट एटलीस्ट, कि उस तरफ हम किस तरह से, एक उस दिशा में किस तरह से हम एक सोच सकें, क्योंकि मुझे पता है कि लार्ज लेवल पे हो नहीं सकता, बट एटलीस्ट वी कैन थिंक अबाउट इट। आई थिंक इंसान एक रैशनल एनिमल है, पर उससे ज़्यादा हद तक ये सच है कि इंसान एक इमोशनल एनिमल है। और रिलीजन उसी का फ़ायदा उठा के अपने आप को मेंटेन करता है कि इंसान एक इमोशनल एनिमल है। रैशनैलिटी की स्ट्रीक हर किसी में है और वो तब दिखती है जब उसको किसी और धर्म के साथ डील करना पड़ता है। मतलब अगर किसी और धर्म का व्यक्ति आके कोई अजीबो-गरीब क्लेम करेगा तो सब रैशनल बन सकते हैं। पर अपने धर्म के ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते बिकॉज़ इमोशनल कनेक्ट। मुझे लगता है कि एक एथियस्ट के रूप में हम कई बार जो मिस्टेक करते हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं धर्म के बारे में, वो ये होता है कि हम कहते हैं कि धर्म गलत है और हम एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसके पास धर्म के अलावा कुछ नहीं है। प्रॉस्पेरिटी नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उसके पास सिर्फ़ धर्म है। तो अगर आप व्यक्ति को बोलोगे तुम्हारे ज़िंदगी का 90% हिस्सा गलत है, तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली वो फाइट बैक करेगा। तो हम उनको कुछ ऑफ़र नहीं करते उसके बदले।
मुझे लगता है कि एथिइज़्म को, रैशनैलिटी को, साइंस को प्रेज़ेंट करने के तरीकों में हमें इमोशन लाना चाहिए। मैं अब अक्सर एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो नील डिग्रास टाइसन का सीरीज़ है कॉस्मोस। इट्स अबाउट साइंस, बट इट प्रेज़ेंट्स इट इन अ वेरी इमोशनल वे। वो एक इंसान को कनेक्ट करता है उसकी ग्लोबल कल्चर के साथ, कि तुम एक इंसान हो, गैलीलियो से लेके आर्यभट्ट तक सब कुछ तुम्हारा इतिहास है, तुम्हारा कल्चर है। और हम इस एस्पेक्ट पर फ़ोकस अक्सर नहीं कराते कि हम सब एक्चुअली दुनिया भर में होने वाली चीज़ों का नतीजा हैं। ये कहना कि हम हमारी संस्कृति से उत्पन्न हुए हैं, इस बात को झुठलाना है कि हम जिस संस्कृति से उत्पन्न हुए हैं, वो पूरी दुनिया में फैली हुई है। इसीलिए आप पाएँगे मॉडर्न हिंदूज़ ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि इजिप्शियन हिंदू थे। नहीं, वो इजिप्शियन थे एंड इट्स ओके। यू गॉट स्टफ फ्रॉम देम आल्सो। नीदरलैंड इंदरलैंड था जैसे। या हाँ, नीदरलैंड, नीदरलैंड था। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया था, हाँ। तो ये जो नीड है कि तुम्हारे लोकल कल्चर को तुम्हें साबित करना है ग्लोबल कल्चर का सोर्स, इसको लेट गो करके तुम ग्लोबल कल्चर को ऐसे ही अप्रिशिएट कर सकते हो। आयरलैंड की मिथोलॉजी में 4 युगों का वर्णन है। कैसे आया? क्योंकि उस समय लोग कहानियाँ सुनाते थे एक-दूसरे को, ट्रैवल करते थे, कहानियाँ सुनाते थे। द रीज़न देयर इज़ कॉमनैलिटी इज़ बिकॉज़ दीज़ स्टोरीज़ वर पॉपुलर। जो अलादीन और जादुई चिराग की कहानी है, अरेबियन नाइट्स की है, इट्स ओरिजिनली अ चाइनीज़ स्टोरी। इट केम फ्रॉम चाइना। सो दीज़ थिंग्स नीड टू बी पॉइंटेड आउट सो दैट लोग जब अपने बारे में सोचें, तो अपने आप को ये वंश, वो वंश सोचने की जगह इंसान समझें, क्योंकि वो हैं इंसान यार। इस बात को तो झुठलाया नहीं जा सकता। सुपर्ब। इन द एंड आप कोई कुछ रिकमेंड अगर करना चाहें, कोई बुक, कोई थिंकर, किसी को भी, यू कैन ऑल्सो टेक योर टाइम इन थिंकिंग, लाइक इफ यू वांट टू रिकमेंड समथिंग जो कि मेरे लिसनर कुछ उससे पढ़ के कुछ नई चीज़ें सीख सकें। हाँ, सो निकोलस कार ने एक किताब लिखी थी द शैलोज़ करके, उसमें उन्होंने बात की थी कि किस प्रकार इंसान के सोचने का जो तरीका है, वो अक्सर उस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब घड़ियों का इन्वेंशन हुआ था, तब के बाद से हम अ, दिन को घंटों में बाँट कर सोचने लगे। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले जब आप बात कर रहे थे, हम 5 बजे की बात कर रहे थे, हम किसी पहर की बात नहीं कर रहे थे। उसी प्रकार वो इस बारे में कि सोशल मीडिया ने हमारे सोचने के तरीके को किस प्रकार फ्रैगमेंट कर दिया है। और इस बारे में भी है शायद कि आने वाले दिनों में एआई की वजह से हमारे सोचने के तरीकों में किस प्रकार का बदलाव आएगा। So that's a very fascinating book that I would really like to recommend. एक्चुअली ये वाला जो फर्स्ट बुक व्हाट यू सेड ना, इससे मुझे उसका याद आया, मैक्लुहान, एक है मार्शल मार्शल मैक्लुहान, जो मैकलुहान, हाँ, हाँ, हाँ। उनका भी ये थियरी है कि जो सारी जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है वो बेसिकली ह्यूमन ह्यूमन बीइंग के जो शरीर का एक तरह से हिस्सा होती है। लाइक ही सेड कि जो कार है दैट इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ योर लेग, और जो टीवी है दैट इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ योर आइज। और उन्होंने बोला कि ये जो पूरा डिजिटल सिस्टम है दैट इज बेसिकली योर न्यूरॉन्स, कि जिस तरह से आपकी न्यूरॉन है उसका एक एक्सटेंशन है। सो या आई रिमाइंड, मतलब दैट इज ऑल्सो वन बुक फॉर माई लिसनर्स, इफ दे वांट टू read, then you should definitely check out McLuhan's Understanding Media. The medium is the message. मीडियम इज द मैसेज उनका बहुत ही पॉपुलर है, और बहुत पहले उन्होंने ये सारा बता दिया था कि किस तरह से ये चीज़ें होने वाली हैं, ग्लोबल विलेज किस तरह से वो होगा। तो ग्लोबल विलेज का एक उनका कंसेप्ट था कि पूरी दुनिया में किस तरह से होगा। तो मैंने बोला इफ वर्ल्ड इज अ ग्लो, मैं अभी मैंने कुछ लिखा भी था उस पर, मैंने कहा इफ द वर्ल्ड इज ग्लोबल विलेज देन मोदी जी इज सरपंच ऑफ इट। In his own head. वॉर रुकवा दी तो उन्होंने, इसलिए वॉर मैंने रुकवा दी। बोला। अभी आया भी था उनका कुछ कि मैंने उनकी आंख बोलता, मैंने उनको देख के कहा कि ये क्या कर रहे हो यार, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। पुतिन को बोला था कुछ, कहीं तो लिखा हो उनको। उनका तो ओबामा के साथ भी तू तड़ाक था, जो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ही डज़न्ट इवन रियलाइज़ कि इंग्लिश में तू, तुम और आप नहीं होता। उसने बोला तू सोता क्यों नहीं। और अगर ये ये प्रधानमंत्री कर रहा है, तो कैन वी इवन ब्लेम द 15 ईयर ओल्ड बॉय जो अब ऑनलाइन बाबा बनने की कोशिश कर रहा है? वही ऐसे मैं कह रहा कितने हूँ। बच्चे हैं अरे जो हाँ, वो एक ऑनलाइन बच्चा है यार, उसको ब्लॉक किया मैंने। हाउ क्या किया? इरिटेटिंग मैन। एक बच्चा नहीं है ऑनलाइन, यू नो दैट, एक बच्चा है, एक लाइक बच्चा दैट्स वेरी है। वेग, किसकी बात कर रहे हो? अरे यार, ही इज रिलीजियस, वो करता है,
मैं तो बाके बिहारी का भक्त हूँ, मेरे बाके भी ऐसे कुछ बोलता है इन अ हाँ, हाँ, आई वेरी हैव सीन इट। क्रिंजी हाँ, टोन, और बहुत हाँ। वायरल है। और उस पे कमेंट ही आते हैं, तू आज फिर स्कूल नहीं गया, तू आज फिर स्कूल मतलब स्कूल नहीं जाता, यही सब करता रहता है। इट्स अ करियर पाथ नाउ, राइट? वो स्कूल क्यों हाँ, जाएगा? फिर वो स्कूल ऑब्वियस क्यों वो जाएगा, कॉलेज क्यों जाएगा अगर उसको पता है उसको नौकरी नहीं मिलने वाली? वो वी मिल आर भी गई तो पुशिंग द एंटायर जनरेशन इनटू दिस नॉनसेंस। एग्जैक्टली, ये भी रोजगार है, जैसे मोदी जी ने कहा था, पकौड़ी बेचना भी हाँ, रोजगार है, उस तरह से। ये प्रॉब्लम अगर हर कोई बाबा बन जाएगा तो लोग फॉलो कौन करेगा? तो वो भी एवरी एक है। पर्सन इज़ अ बाबा, इमेजिन इट्स लाइक भक्त कंटेंट कौन बनेगा? क्रिएटर ही, सभी कंटेंट क्रिएटर हैं, तो कंज्यूमर कौन है? एग्ज़ैक्टली, ये सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में हुआ ना कि जो 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 कोचेस थे, हाँ, दे रियलाइज्ड कि उनके बहुत सारे फॉलोअर जो लाइफ कोच होते हैं अमेरिका में, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स खुद लाइफ कोच बनना चाहते थे, तो उन्होंने कोर्स शुरू कर दिए, हाउ टू बिकम अ कोच। एंड देन उनके कोर्सेस से जो लोग निकले, उन्होंने भी कोर्स शुरू किया हाउ टू बिकम अ कोच। सो इट वाज़ कोचेस टीचिंग पीपल टू बी कोचेस, टू टीच पीपल हाउ टू बी कोचेस। इट बिकेम अ पैंडेमिक। एवरीवन इज़ टीचिंग पीपल हाउ टू बी अ टीचर। हमारे यहाँ वही हो रहा है, बस थोड़ा रिलिजियस फ्लेवर के साथ हो रहा है, और क्या। सेल्फ हेल्प की इंडस्ट्री भी तो जबरदस्त है, वो तो है, एक अलग ही जॉनरा है। हाँ। सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली और सबसे ज्यादा रिडिकुलस इंडस्ट्री जो लगती है, ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, सेल्फ हेल्प, कोई इसका कोई लॉजिक नहीं है लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए, या फिर किस तरह हाँ, से होता है, बस। इंडिविजुअल लाइफ को कैसे देखता है, हर एक्सपीरियंस आपका सब्जेक्टिव है। कैपिटलिज्म के आप मारे हो, तो आपको कैपिटलिज्म में सॉल्यूशन दे दिया कि आप, अच्छा, एक तरफ से कैपिटलिज्म ने आपको जॉब और जॉबलेसनेस के चक्कर में आपकी लाइफ खराब की, तो देयर इज अ सॉल्यूशन कि आप इस तरह से ग्रोथ कर सकते हो, इस तरह से प्रोडक्टिविटी, कल क्या होगा, 10 दिन बाद क्या करना है, 20 दिन बाद, तो मतलब भाई, तो इसीलिए एक एंटी सेल्फ हार्ड हेल्प वर्क। जॉनरा भी शुरू हो गया इस चक्कर में, तो जो कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, स्टैंडिंग, मैं उसका नाम लिख दूंगा, मैं भूल गया मैं एग्जैक्टली, रेजिस्टिंग द क्रेज ऑफ सेल्फ हेल्प, स्टैंडिंग फर्म टू योर ग्राउंड, ऐसा कुछ है उसका नाम। तो वो मैंने हुँ। बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, तो तब मुझे समझ आया कि ये पूरा एक कितना। किताब थी उसका, मतलब उस किताब का नाम शैम था, SHAM। एंड इट वाज़ उसका फुल फॉर्म था सेल्फ हेल्प समथिंग मिथ, जो कि काफ़ी पुरानी है। मैं तब, मतलब आई वाज़ इन माय फर्स्ट जॉब व्हेन आई सॉ इट इन अ बुक स्टोर, बट आई नेवर रेड इट। उसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने बताया, रेदर देन listening to this testicle, not testicle, listicle, listicle, listicles, तो उसकी जगह कि ये 7 इस चीज़ें में कैसे करें, 10 इसमें कैसे करें, 12 रूल ऑफ लाइफ एंड व्हाटएवर, इसके हुँ। बजाय यू रीड नॉवेल्स। इफ यू या, रियली वांट टू ग्रो एज अ ह्यूमन येस। बीइंग, रीड नॉवल, बिकॉज नॉवल में ऐसा होता है कि देयर इज नो एग्जैक्ट रेजोल्यूशन, देयर इज कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड किसी का जर्नी, उसका सबकॉन्शियस क्या कह रहा है, किस तरह से वो बातें कर रहा है। तो इन दैट यू लर्न अबाउट लाइफ अ लॉट मोर देन, लेट्स से, रीडिंग दीज 10 रूल्स और 12 रूल्स, और इसके बजाय, एंड थ्रू दैट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल, एंड लाइफ इज सो मेसी, एंड मे बी देर इज नो वे टू अनटेंगल इट और वॉट एवर इतना easily 10 स्टेप में, 12 स्टेप में, बट यू then try to navigate through that complexity that makes you much wiser, let's say, rather than doing a course of 20 days, और वहां पे आपको लग इनफैक्ट रहा मैं मैं तो ये भी वाइज मानता हो हूँ गया। कि अगर अगर लोगों को ज़्यादा लिटरेचर के प्रति एक्सपोज़र दिया जाए ना, तो रिलिजन का होल्ड भी उनके ऊपर कम होगा। कई लोग जो कि मिथकों को इतिहास मानकर बैठे हैं, अगर वो फैंटेसी पढ़ेंगे और साइंस फिक्शन पढ़ेंगे, कॉमिक्स भी पढ़ेंगे, उनको रियलाइज़ होगा कि यार ये तो दीज़ आर ऑल बेटर देन द इमेजिनेशन इन माय रिलिजियस तो बुक। मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था जायद मसरूर खान के साथ, तो उसमें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, हम कॉमिक बुक को डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा मेरा ऐसा मानना है, या फिर उन्होंने कहीं पढ़ा था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, बट उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर जो बच्चे बचपन में कॉमिक बुक ज़्यादा पढ़ते थे, उनका रिलीजन का उन पे प्रभाव कम होता था, क्योंकि उनके सुपर हीरो और उनके भगवान कुछ और होते थे। बड़ा या इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इट्स मैंने कहा इट्स वेरी, कि आप या दूसरी सुपरनैचुरल चीज़ों में, या फिर ये इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर जीने लगते हो, रेदर देन, लेट्स से, सो इसीलिए दोनों को मिक्स भी कर दिया, लाइक रिलीजन आल्सो गॉट मिक्स्ड विद द कॉमिक बुक इन लेटर या स्टेज। या तो उसके या अंदर वही आई थिंक सुपर इट्स हीरो। इवन बेटर इन वन रिस्पेक्ट, राइट? तुम सुपरमैन और बैटमैन के बारे में जोक मार सकते हो, कोई तुमको पीटेगा नहीं। सो इन दैट रिस्पेक्ट आल्सो इट इज़ बेटर। You get to exercise your imagination. The literature frees your mind from thinking कि अरे लिखा है तो सच ही होगा, and you can also make fun of it and therefore become a more critical human being कि
मैंने किताब पढ़ी, वो किताब मुझे पसंद नहीं आई, क्या बकवास लिखा है। ये तुम अपनी धार्मिक किताब के बारे में बोल नहीं सकते। अगर कोई किताब तुमको बोल रही है कि तुम मेरा मज़ाक उड़ा ही नहीं सकते, तो वो किताब वो काम नहीं कर रही है जो लिटरेचर को करना चाहिए, क्योंकि लिटरेचर तुमको ज़्यादा क्रिटिकल बनाती है। Superb. Thank you so much, Vimo. What is the meaning of your name, by the way? इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ माय फुल नेम, विजेंद्र मोहांती, अच्छा. एंड इट पहली आल्सो बार सुना मीन्स हुआ है नाम. डिसइल्यूशनमेंट और समथिंग। विमो. मतलब वो जो साधु तपस्या करते थे, अप्सराएँ नाचती थी और वो विमोहित हो जाते थे, अच्छा, इट्स दैट। ओके. सो काइंड ऑफ फिट्स आल्सो, क्योंकि मैं डिसइल्यूशन कर रहा हूँ लोगों को रिलिजन से। हाँ, interesting. Nice. Superb. Thank you so much for taking थैंक the यू time. अनुराग, इट वाज़ सच अ प्लेज़र एंड माय ऑनर ऑब्वियसली। Thank you so चलो, much. Just 1 second. So this was today's episode. If you like it, then please do support us on Patreon, Buy Me a Coffee, and other mediums. All the links are mentioned in the description box, so please do check them out. Thank you so much for watching to this podcast or listening to this podcast. I don't know where it is going, but yeah.